नेशनल इनकम एक पूरी यूनिट है। नेशनल इनकम एक पूरी यूनिट है। बोर्ड्स में 10 मार्क्स की। सुनने में 10 के लिए आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि 4 चैप्टर अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं। बट वो तो बोर्ड्स में है ना, उससे पहले हो सकता है आपको 40 मार्क्स का नेशनल इनकम आ जाए। तो आपके लिए सब कुछ ही अभी नेशनल इनकम होगा। नेशनल इनकम इज द नेम ऑफ द एंटायर यूनिट, divided into 4 different chapters. First chapter is based on general introduction, circular flow of income. उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने 11th में तो पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट है नेशनल इनकम। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली. The term macro has been derived from a Greek word macros, which means large. So macroeconomics deals with overall performance of the economy. Overall, we are dealing with the economy as a whole. Micro, small; macros, large. It is concerned with the study of the problems of the economy, like inflation, unemployment, poverty, etc. Macroeconomics definition. Define macroeconomics. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. So, जब define करने को आएगा, you have to use the exact definition. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior. Study behavior ही कर रहे हैं, human behavior, but study of the behavior of aggregates here. वहां पे था consumer behavior, producer behavior, market with respect to a particular product. यहाँ पे है behavior of aggregates of the economy as a whole. For example, national income, aggregate output, aggregate consumption, etc. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply. Microeconomics में पढ़ा था market demand and market supply. Meaning of macroeconomics and what is the difference between micro and macro? Difference between micro and macro 3 to 4 marks में आया हुआ है. फ्री के मार्क्स होते हैं, कुछ लोग सीधा आगे स्किप कर जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये तो हम अपने आप क्रिएट कर लेंगे. 1 मार्कर के लिए क्रिएट कर सकते हो, 4 मार्कर के लिए डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे. सो अंडरस्टैंड एंड देन लर्न प्रॉपर्ली. जब भी कोई चीज डिफरेंशिएट करो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, जब भी कोई चीज डिफरेंशिएट करो एंड एज फार एज पॉसिबल किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिस जरूर यूज करना. बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करा जा रहा है. अकाउंटेंसी में भी यूज होते हैं बेसिस. बेसिस नहीं यूज करोगे, आंसर की क्वालिटी कम होगी. टीचर की मर्जी है कि वो फुल मार्क्स दे कि ना दे. तो यूज बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन. फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन. नंबर 1, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करा जा रहा है. मीनिंग. कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. It is that part of economic theory which studies the behavior of theory which individual units of an economy, which deals behavior of individual units of an economy. Sorry, misprint hai. Behavior of individual units of an economy. On the other hand, what is macroeconomics? It is the behavior of aggregates of the economy as a whole. Microeconomics में we are studying the behavior of individual units, consumer, producer, market, economy as a whole. Tools, demand and supply. यहाँ aggregate demand and aggregate supply. वहां पे हमने पढ़ा था law of demand, law of supply. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं aggregate demand, aggregate supply. Objectives क्या था? The basic purpose was determination of price of a commodity. हमने कंज्यूमर बिहेवियर पूरा स्टडी करा, प्रोड्यूसर बिहेवियर पूरा स्टडी करा, बट वो सब आइसोलेशन में किसी काम के नहीं है. वो सब सीखे गए थे ताकि हम मार्केट इक्विलिब्रियम एसर्टेन करें. तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज प्राइस डिटर्मिनेशन. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे द बेसिक एम इज टू डिटरमिन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम क्या एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं. When does an economy attain equilibrium? Equilibrium level of output, employment and income. Basic objective. Degree of aggregation.
इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो में भी होती है बट वेरी लिमिटेड डिग्री, मतलब मार्केट डिमांड के लिए भी आप टोटल कर रहे हैं बट सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और whereas मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। Basic assumptions, it assumes all the macro variables to be constant। कह रहे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, मैक्रो चेंज नहीं हो रहे, इनकम, नेशन की इनकम चेंज नहीं हो रही, नो चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, नो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी ऑफ द, मैक्रो लेवल पे कुछ, जब हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं ना, मैक्रो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। कह रहे जो फैक्टर्स है वो चेंज नहीं हो रहे, अजम्पशन थी बहुत बड़ी। जब आप मैक्रो स्टडी कर रहे हैं, we assume that all the micro variables are constant like decisions। जब मैक्रो स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो को कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा कि वो सब कांस्टेंट है, उनमें से कुछ चेंज नहीं हो रहा। जब आप माइक्रो स्टडी कर रहे हो तो मैक्रो कांस्टेंट माना जाएगा, वो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अदर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी एज इट प्राइमरीली focuses on the determination of price। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था, price determination of the commodities or factors of production। तो microeconomics is also known as price theory, macroeconomics is also known as income and employment theory as basic objective way, as it is primarily concerned with the determination of level of income। Examples, individual income, individual output। individual income कैसे कहते हैं? per capita income। individual output सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ये सभी माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ही हैं। और यहाँ पे क्या है? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई, मैक्रो कॉन्सेप्ट्स। जीडीपी इज वेरिएशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली, दैट इज ऑल्सो मैक्रो कॉन्सेप्ट। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बनानी पड़ गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर नहीं कर पा रहा था, उसकी तो अपनी लिमिटेशन है ना। इट इज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट हैज ब्रेकन डाउन द इकोनॉमी इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर। Microeconomics failed to study the aggregates of the economy as a whole. As a result, there was a need for a separate theory which could explain the working of the economy. Microeconomics could not deal with the working of the economy. Macroeconomics helps. It helps us to understand the working of an economic system as well as to explain the various macroeconomic paradoxes. What do you mean by a paradox? A paradox is a contradictory phenomena, contradictory statement। Paradox मतलब something which gives you opposite results। माइक्रो में कोई चीज होती है, मैक्रो में उसके उल्टा हो सकता है। कह रहे सर जैसे कि as an individual, is it a good habit to save or a bad habit to save? It is a very good habit to save। इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करी जाए, नेशन की ग्रोथ की बात करी जाए, is it a good habit to save or a bad habit to save? नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बैड हैबिट। पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स होता है कि सर सेविंग तो गुड हैबिट थी, ये बैड हैबिट कैसे हो गई? तो सेम चीज डिफरेंट सिचुएशन में ऑपोजिट रिजल्ट दे सकती है, तो हम यही पैराडॉक्स स्टडी करते हैं। व्हाई इज इट अ बैड हैबिट? आई विल एक्सप्लेन। वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another person's income। Economy works on the system that one person's expenditure is another person's इनकम। आपने ट्यूशन ज्वाइन करी, आपने ट्यूशन फीस पे करी, इज इट एन इनकम फॉर यू और एन एक्सपेंस? एक्सपेंस। इट इज एन इनकम फॉर मी। आप वो खर्चा नहीं करोगे तो उतनी इनकम कम जनरेट होगी। अब मेरी इनकम जनरेट हुई, आपने खर्चा करा, मेरी इनकम जनरेट हुई, नेशन की उतनी इनकम हो गई, मेरी जितनी इनकम है नेशन की हुई। अब मैंने जो इनकम जनरेट करी, फिर मैंने खर्चा किया,
अब मैंने अगर 100 रुपए कमाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने उसमें से 50 रुपए सेव करे और 50 रुपए खर्च करे, तो मेरे खर्चे से नेशन की इनकम में कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 50। लेकिन अगर मैं सेव करता 10 और खर्च करता 90 तो कितनी होती? तो मैं जितना ज्यादा खर्चा करूंगा इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, मैं जितने ज्यादा सेव करूंगा उतना पैसा सिस्टम में से साइड होता जा रहा है। तो जो सेव करोगे वही तो बैंक्स में ही जाएगा, आएगा वो डिफरेंट रूट में आएगा, ये तो डायरेक्टली आ रहा था। दैट विल टेक अ लॉन्गर रूट कि बैंक्स के पास जाएगा, फिर बैंक आगे लोन देंगे और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो सेविंग दो टाइप की होती हैं, एक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और एक लॉन्ग टर्म सेविंग। एक होती है ऐसी सेविंग कि बस आपने कहीं भी नहीं डाले और रख लिए बस पैसे। पॉइंट इज कि हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे इकोनॉमी उतनी ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करेगी। तो रिसेशन होता है फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। फॉल इन एग्रीगेट डिमांड मतलब लोगों की डिमांड गिर गई है। सर लोगों की डिमांड गिर गई है, तो लोगों की डिमांड गिर गई है तो आप कम सामान खरीद रहे हो, कम सामान खरीद रहे हो तो प्रोड्यूसर फिर कम बनाएगा, प्रोड्यूसर कम बनाएगा, आउटपुट कम होगा। आउटपुट के लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर प्रोड्यूसर अपना आउटपुट कम करेगा तो ले ऑफ करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा कि अभी हमारे आउटपुट इतना है नहीं, हमें जरूरत नहीं है प्रोडक्शन की, तो अभी ले ऑफ हो रहे हैं ग्लोबली। तो वो इसी वजह से हो रहे हैं, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ग्लोबल रिसेशन के बहुत करीब है, बहुत करीब है। मतलब टेक्निकली हम फेस कर रहे हैं बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं। इंडिया तो बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है बाहर की कंट्रीज से, बट यूएस रिसेशन किसी भी टाइम अनाउंस हो सकता, मतलब सारे वो स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं उन चीजों के जो कि रिसेशन के लिए चाहिए होते हैं, बट स्टिल ऑफिशियली उन्होंने ये एडमिट नहीं करा है दैट दे आर फेसिंग रिसेशन। पॉइंट इज कि अगर खर्चा कम होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। मैं बस पैराडॉक्स का मीनिंग बता रहा था। तो पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। माइक्रो के लिए सेविंग, इंडिविजुअल के लिए सेविंग करना अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं। तो मतलब पैराडॉक्सेस के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे व्हाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स।